جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کبھی مسجدوں پر آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی طلاق کے نام پر مسلمانوں کے خلاف قانون بنایا جاتا ہے۔ آج یہاں تک بات آ پڑی ہے کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد نے جو اللہ کے نام پر زمین وقف کیا تھا اس کے خلاف پارلیمنٹ میں ایک ایسے کالا قانون کو لایا گیا ہے جس کالے قانون کے نام پر جب اس کو آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے، جب اس کو سماج میں نافذ کیا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہے ہیں تو آج سے 1400 سال پہلے جو پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر درس دینے والے ان علماء ربانیین کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی معتبر اور مستند حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ تک اس لیے پہنچا دی تاکہ آپ جان جائیں جو یکے بدیگر علماء کرام آ رہے ہیں وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ تک یہ باتیں پہنچا دی، ورنہ آج کے اس دور میں اور ابھی جو دور چل رہا ہے، ابھی جو ماحول آ پڑا ہے، اس میں کس قدر گفتگو ہونی چاہیے وہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو ایک اشعار پڑھا ہے وہ اشعار یہ ہے کہ جس قوم کا زوال آتا ہے اس کا فکر اور عمل قوت سب پہلے فنا ہو جایا کرتی ہے، تو آج یہی حال قوم مسلم کا ہے۔ جب آپ غور اور تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا اور آپ کا فکر اور عمل برباد ہو چکا ہے، چاہے وہ شادی کی محفل ہو، چاہے وہ عقیقہ کی محفل ہو، چاہے وہ ختنہ کی محفل ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے غور کیجئے اور سوچئے آپ کے اس ارد و گرد میں، آپ کے اس پانسکوڑا اور برشنگ پور کے علاقے میں کیا یہ نہیں ہوتا ہے؟ چاہے وہ ختنہ کی محفل ہو، چاہے وہ عقیقہ کی محفل ہو، لیکن اس میں ڈی جے ناچ گانا بجانے کی محفل جو صاحب سجاتے ہیں اور اس میں انجوائے کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام سے سجاتے ہیں۔ جب امام صاحب اس کو منع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا کون سی بات کرتے ہو، یہ آج کے نوجوان نہیں مانتے، آج اگر ہم اس کو منع کریں گے تو ہم ہی کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے کہ آج کا نوجوان اتنا بگڑ چکا ہے۔ شادی کی محفل، جس شادی کی محفل کو پیغمبر اعظم نے سنت قرار دیا تھا شادی کرنے کو، لیکن سنت کے طریقے پر کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر حرام کام ایسے گھس پڑا ہے، جہیز کا مطالبہ اور اس میں ناچ گانے کی محفل اور نہ جانے کن کن خرافات کو کیا جاتا ہے۔ ادارے شریعہ تحریک لے کر کے آج یہ تحریک لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہے اور یہ پیغام یہاں سے دینے جا رہا ہے کہ آج جو آپ کی شادی کی محفل میں، آپ کی ختنہ اور عقیقے کی محفل میں ناچ گانے ڈی جے بجانے یعنی ان تمام خرافات جو کیے جاتے ہیں، ان خرافات کو بند کیا جائے۔ اگر آپ بند نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے میں ہے۔ جس قوم سے بات کرنے کے لیے کل تک غیر مسلم تھراتے تھے، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج وہی قوم کو سڑکوں پر مارا جا رہا ہے، کبھی مسجدوں کے میناروں پر کھڑے ہو کر کے دوسرے قوم کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، کبھی بیچ چوک چوراہے پر پکڑ کر کے قوم مسلم کے داڑھی کو پکڑ کر کے مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، کبھی اور غیر سنویدھانک نعرے کو لگایا جاتا ہے۔ نہ جانے مسلمانوں کو کون سی سزائیں دی جا رہی ہے اور کون سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہیں تک محدود نہیں ہے، آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، آپ نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی چھوڑ دی، تو اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ اس کا ریزلٹ یہ نکلا جب تم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا تو آج اس کا ریزلٹ یہ ہوا آپ کی مسجدوں کو توڑنے کے لیے آج بلڈوزر لے کر کے آپ کے مسجدوں کے دروازے کے سامنے دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر کے آ رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے قانون کو توڑا ہے، مسجدوں کو آباد نہیں کیا ہے، علماء کی تعظیم نہیں کی ہے، سنتوں کو تاک کے پیچھے چھوڑ دیا ہے، پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ آج ہماری ماں بہنوں نے پردہ کا لحاظ نہیں رکھا، اسکول اور کالج کے نام پر پردے کو تاک کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ اب کوئی نقاب
नकाब हिजाब लगा करके कोई स्कूल और कॉलेज नहीं जाएगी। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने रास्ता बनाया है, हम लोगों ने रास्ता दिया है, हम लोगों ने सुराख छोड़ा है, यहीं तक महदूद नहीं है। आप और आगे गौर कीजिए, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कभी मस्जिदों पर आवाज उठाई जाती है, कभी तलाक के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाया जाता है। आज यहां तक बात आ पड़ी है कि मुसलमानों के आबा व अजदाद ने जो अल्लाह के नाम पर जमीन वक्फ किया था, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में एक ऐसे काला कानून को लाया गया है, जिस काले कानून के नाम पर जब उसको आपके सामने लेकर के आएंगे, जब उसको समाज में नाफिज किया जाएगा, उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यह होगा, हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया ना, तो उसका रिजल्ट ये हुआ है, आज कानून को पास कर दिया गया है दोनों सदनों से, और उसका रिजल्ट क्या होगा? कलेक्टर को हुक्म दिया जाएगा, ये वक्फ की जमीन नहीं है, बुलडोजर लेकर के आए जाएंगे, उसको शहीद कर दिया जाएगा, मस्जिदें तोड़ दी जाएगी, खानकाह उजाड़ दिया जाएगा, कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा। किस लिए? हमारे अमल इस कदर नहीं है, हमने अपने अमाल का जायजा नहीं लिया, हमने अपने गौरव, हमने अपने कुव्वत फिक्र को ऊंचाई तक नहीं पहुंचाई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हमारे खिलाफ दोनों सदनों में कानून पास कर दिया गया। हालांकि वो कानून अनुच्छेद 14 और 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 और 15 में बाबा अंबेडकर ने ये हक दिया है, जो संविधान में ये हक दिया है, चाहे वो जिस मजहब को मानने वाला हो, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर और दूसरे गैर संविधानिक नाम पर किसी को सताया नहीं जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज ये हुक्मरान हमारे खिलाफ गैर संविधानिक कानून लाया है। किस लिए? हमने अपने आमाल को बिगाड़ दिया, हमने अपने मस्जिदों को आबाद करने छोड़ दिए, हमने खानकाह और सिर्फ चादर और गादर में मस्त रहे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे खिलाफ कानून को ले आया गया। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, मस्जिदों को आबाद किया जाए, सुन्नत नबवी के मुताबिक शादी की जाए, जहेज के मुतालबा को तोड़ दिया जाए। पार्लियामेंट में बिल पास किया गया है। आज इदारे शरिया तहरीक के नाम पर यहाँ पर बिल लेकर के जाइए, एक ऐसा बिल लेकर के जाइए जिस बिल के बैनर तले आपकी शादी होगी लेकिन सुन्नत नबवी के मुताबिक होगी। यहाँ से एक बिल लेकर के जाइए, इस बिल में ये आप पास करके लेकर के जाइए, आपके बच्चे का खतना होगा लेकिन सुन्नत नबवी के मुताबिक होगा, आपके यहाँ पर अकीका होगा लेकिन सुन्नत नबवी के मुताबिक होगा। जब आप सुन्नत नबवी के मुताबिक निकाह करेंगे, अकीका करेंगे, खतना करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ कोई कानून पास कर दे। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपने आमाल को सुधारें। हम और आप ये शिकवा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे खिलाफ तरह तरह के कानून पास किए जा रहे हैं और हमारे लिए वो लड़ेगा, हमारे लिए ये लड़ेगा, तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। इसलिए नहीं लड़ेगा, तुमने अपने आमाल को सुधारा नहीं है, तुमने अपने आमाल और किरदार को बिगाड़ दिया है। तुम्हारे लिए तो कुरान पाक में आया है कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारे रास्ते को देखकर लोग रास्ते पर चलेंगे, लेकिन आज हमारे आमाल को देखकर शैतान भी घबरा जाए, आज हमारे रवैया को देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने आमाल का जायजा लें और हमारा हर एक कौल फेल सुन्नत नबवी के मुताबिक हो। और यहाँ से और एक पैगाम लेकर के जाइए, आप अपने औलाद के दिलों में, आप अपने वालिदैन के दिलों में, आप अपने बच्चों के दिलों में, आप अपने मुसलमान के कौम मुस्लिम के भाई और बहनों के दिलों में पैगंबर आजम की मोहब्बत को डाल दीजिए। जब आप अपने पैगंबर आजम की मोहब्बत अपने औलाद के दिलों में डाल देंगे, आपका बच्चा इस दुनिया में भी कामयाब रहेगा, कल क़यामत में भी कामयाब रहेगा, हर एक डिपार्टमेंट में कामयाब होता हुआ नजर आएगा, हत्ता के कब्र में भी कामयाब रहेगा, हश्र में भी कामयाब रहेगा। पैगंबर आजम फरमाते हैं ला
युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम मुझसे अपने वालिद से ज्यादा, अपने वालिदा से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा और दुनिया के हर एक शख्स से ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत न करने लगो। एक तरफ तो हम और आप नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा लगाते हैं, और ये नारा लगाते हुए कहते हैं कि हम रसूल पाक के नाम पर जान को निछावर कर देंगे, और ये झूठा खोखला दावा करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे नौजवान के हाथों में शराब का बोतल है, हमारे नौजवान ज़िना के अड्डों को आज उसको अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, और जुआ और ताश खेलते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक खुराफात को करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे मुखातब होकर के कहना चाहता हूँ, एक कौम मुस्लिम के नौजवान, तुम लीडर हो, तुम इस कौम के पाया हो, तुम इस कौम के खंबा हो, तुम अगर बिगड़ोगे तुम्हारा समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, जितनी शिद्दत के साथ तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो, उतनी शिद्दत के साथ तुम्हें अमल पर उतरना पड़ेगा। सिर्फ नारा लगा लेने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि मैदान पर उतर जाएं और अमल करके दिखाएं। जब आप अमल करके दिखाएंगे, दुनिया के कोई माइकलाल आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा। इसलिए कि दीन इस्लाम का न कल कोई नुकसान पहुंचाया था, न आज के इस दौर में कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। इसलिए दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मजहब है। कल जब 77 थे उस वक्त कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। कल जब तने तनहा पैगंबर आजम अरब के सरजमीन पर थे उस वक्त दीन इस्लाम का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो आज के इस दौर में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आज हम और आप अगर सरकार के निशाने में है, हुक्मरानों के निशाने में है, तो ये हमारे आमाल का नतीजा है। इसलिए जरूरत इस बात की है अपने आमाल को सुधारा जाए। अगर हम और आप अपने आमाल को सुधार लेंगे तो हमारा और आपका अंजाम क्या होगा? क्या आपने नहीं देखा स्पेन की सरजमीन पर, बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद की कौन सी सरजमीन, तारीख का जब आप मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा बगदाद की सरजमीन पर बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़ी वली अल्लाह की जमीन है बगदाद की सरजमीन, वो स्पेन की सरजमीन। लेकिन वहां पर जब वहां के लोगों ने शराब को पीना आम कर दिया, ज़िना के बाजार को गर्म कर दिया, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, उसका अंजाम क्या हुआ? वहां के तातारियों ने मुसलमान कौम के लोगों के सरों को काट दिया, और इतना काटा कि दरियाए दजला खून से लाल हो गया। यहीं तक महदूद नहीं, मुसलमानों के सरों से मीनार बनाए गए और उस पर बैठकर तातारी ने शराब पिया था और ये पैगाम दिया था, अब इस जमीन पर कोई अल्लाह अकबर पुकारने वाला मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तातारियों के दिलों में मोहब्बत डाल दिया दीन इस्लाम का। उन्हीं लोगों ने कलमा पढ़ा और दीन इस्लाम आज भी वहां पर मौजूद है और फैल रहा है। तो पता क्या चला? अगर हम और आप अपने आमाल को सुधार लेंगे, चाहे हुक्मरान जो भी हो, लेकिन दीन इस्लाम का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दीन इस्लाम कल भी था, आज भी है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। ज़रूरत इस बात की है अपने आमाल का जायज़ा लें और अपने आमाल को सुधारें। हमारा और आपका हर एक कौल फ़ेल, हर एक अमल सुन्नत नबवी के मुताबिक होनी चाहिए। जब हमारा आमाल सुन्नत नबवी के मुताबिक होगा तो हम और आप हर एक डिपार्टमेंट में कामयाब और कामरान होते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला ताला बोलने में किस तरह की गलतियाँ कोताहियाँ हो गई तो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमा, और लोगों को और मुझे भी सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम।